عارف والا میں اندوناک واقعہ جہاں زہر خورانی سے ماں سمیت 4 بچے جاں بحق۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ کیسے رونما ہوا، کھانے میں مبینہ طور پر زہر کس نے اور کیوں ملایا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین۔ اس وقت موجود ہوں میں عارف والا کے گاؤں 143 ای میں، جہاں افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے زہر خورانی کا۔ صابرہ بی بی اور ان کے 3 بچے بلال، ریجا اور عیشا جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ان کا 3 سالہ بچہ عبداللہ آج بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مبینہ طور پر یہ زہر کھایا گیا، کھلایا گیا یا یہ حادثہ ہے؟ ان کے گھر میں موجود ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ توفیق صاحب، جب یہ واقعہ رونما ہوا آپ اس وقت کہاں موجود تھے اور آپ کو کب پتہ چلا؟ سر میرا ہے یہ کیرج کا کام، زمین بانے بونے کا۔ میں صبح سانجے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بچوں نے پیچھے سے ناشتہ کریا ہے، ایک میری والدہ، 4 میرے بچے ہیں، ایک میری بیوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھر میں کوئی چیز نہیں بنی تھی، میں نے چاولوں کا ناشتہ کریا۔ ڈرائیور میرا آج یہ آ گیا صبح، اس کے لیے میں نان چنے لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جب میں دوپہر گھر آیا جی، اور روٹی کے ساتھ میں نے دال ساتھ کھانا کھایا، ٹھیک ہے جی۔ 12 بجے میرا ایک بیٹی اور ایک بیٹا کہنے لگے دل گھبراتا ہے۔ میں اس کو گاؤں میں لے گیا، دوائی لے کے سیرپ وغیرہ دے دیے۔ جب شام کے 4-5 بجے نا دوسرے 2 بچے بولے دل گھبراتا ہے اور الٹیاں آ گئی ہیں 4 بچوں کو۔ ان کو عارف والے لے گئے جی، سیول ایمرجنسی میں لے گئے۔ ان لوگوں نے ٹیکے لگا دیے اور بولے اللہ بہتر کرے گا، ہم آ گئے گھر بغیر چیک کیے؟ ٹیکے لگا دیے چیک چوک کر کے۔ بس پیر والے دن شام 5-6 ہوئے، میری بیوی کہتی میرا سانس رکتا ہے اور میرا بھی دل گھبراتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں چل بچوں کو بھی لے چل، تم بھی چل۔ ہم جی پھر چلے گئے ایمرجنسی عارف والے، انہوں نے ٹیکے لگائے، ڈرپیں لگائی۔ ادھر ہم رہے جی تقریباً 1 بجے تک۔ 2 بچوں کو نلایا بھی، بولے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب نیند میں ہیں، ان کو انجیکشن لگ گئے ہیں، ڈرپ لگی ہیں، صبح بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم گھر آ گئے واپس، صبح دیکھا بچوں کی اسی طرح حالت۔ پھر میں بچوں کو لے کے ساہیوال چلا گیا، 2 بچوں کی حالت بہت سیریس تھی۔ میں بولا بھی ہمیں ریفر کر دیں، لاہور چلے جائیں گے۔ وہ بولے اسی طرح ریفر نہیں کریں گے، عارف والے سے پولیس آئے گی، وہ رپورٹ بنائے گی، پھر جانے دیں گے۔ انہوں نے وہ عارف والی پولیس آئی، رپورٹ وغیرہ بنائی اور 2 بچوں کو ریفر کرایا۔ میں نے کیا باقی 3 کو ڈسچارج کر دیں، ہم آدھے ادھر پریشان ہوئیں گے، آدھے ادھر پریشان ہوئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے وہ ڈسچارج کر دیے، ہم لاہور چلے گئے جی۔ ادھر جا کے نا تقریباً 11-11:30 بجے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی جی، بلال کی۔ 1-1:30 بجے تقریباً میری بیٹی عشا کی ڈیتھ ہو گئی جی۔ پیچھے رہ گئی میری بیوی، وہ جنرل ہاسپٹل سی، وہ بھی 1-1:30 بجے آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہم لیٹ گئے، وہ لیٹ گئی، بولی میرا سر بہت دکھتا ہے، میں مٹھی بھرنے لگ گیا۔ ایک بیٹی ایک بیٹا پیچھے رہ گئے۔ صبح میں تو ان دونوں کی ڈیڈ باڈی لے کے ادھر آ گیا جی، اور بیوی بھی میری، انہوں نے کیا بھی لے جا، ڈاکٹر نے کیا بھی خطرے سے باہر ہے بات، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ذہنی توازن نہیں صحیح، ہو جائے گا 10-15 دن میں۔ ہم آ گئے جی، ادھر آ کے جی نا شام کو دفنایا بچوں کو جی۔ ڈاکٹر نے یہ کیا بھی یہ خطرے سے باہر ہے، کوئی ذہنی دباؤ ہے بچوں کا، ہو جائے گی 10-15 دن میں۔ جسی طرح ادھر واپس گھر آئے اسی طرح طبیعت خراب ہوتی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شام بخار ہو گیا تیز بیوی کو، اور پھر عارف والے لے گئے ایمرجنسی، ٹھیک ہے۔ ادھر لے گئے تو انہوں نے بھی ٹیکے شیکے ڈرپیں لگائی، ٹھیک ہے جی۔ بیوی ذہنی توازن نہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دو مجھے، ایسے ڈرپ اتار دینا۔ ادھر سے 2 بجے آئی جی، ٹھیک ہے جی۔ صبح پھر میں لے کے نا لاہور چلا گیا، لاہور انٹر ہوئے بھی، پہنچے ہیں لاہور، خبر آ گئی بھی بیٹی بھی
डेथ होगी बड़ी की, ठीक है जी। इनको जनरल हॉस्पिटल दाखिल कराया, सीटी स्कैन वगैरह वो भी कराया, एक्सरे कराया, सब कुछ क्लियर आया, ठीक है जी। फिर बेटी की डेड बॉडी लेके हम इधर आ गए, ठीक है। उसका वो कराया जी पोस्टमार्टम, ठीक है। तो फिर दफना दी बेटी। बीबी मेरी का पोस्टमार्टम कराया, ठीक है। अचार तो घी वो ठोकर लेबॉर्ट्री है उधर भेज रखा है, और ये पोस्टमार्टम भी उधर चले गए हैं। आपको कब पता चला ये डॉक्टर्स को कि ये असल में जहर खाया है? हम इस शक के मुताबिक भी कोई छिपकली वगैरह, कोई जानवर वगैरह इसी तरह का, ठीक है, हम इस शक पे। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्या ऐसा ही है डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है? क्या हुआ। डॉक्टर को पता होता मैदे वाश करता, उनने मैदे वाश करे ही नहीं बच्चों के। अभी जो एक दो दिन इधर चले गए। हाँ जी। अभी जो बच्चा आपका अस्पताल में लाहौर में, उसकी हालत कैसी है? वो भी सीरियस है जी, अब्दुल्ला भी सीरियस है जी। आपको क्या लगता है कि मुबैना तौर पर ये जहर खाया गया है, खिलाया गया है, ये कोई जहरीली चीज़ मिली है, यानी कि हादसा है, खुदकुशी है या कत्ल है? आपको क्या लगता है? देखो जी, अभी तो कुछ भी नहीं पता जी। कभी सोचा था ऐसी सूरत हाल होगी? कभी भी नहीं। अच्छी तरह अगर मैं बाहर काम करता हूँ, बीवी मेरी हाथे में काम कर लेती थी। घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मियाँ बीवी का, कभी नहीं। अब बच्चों का टाइम हो गया, तुम स्कूल ले आना, आप खेत में लेट ना हो जाना, कोई इसी तरह का नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ नहीं था। पुलिस वाले आपके साथ ताउन कर रहे हैं, या जो फोरेंसिक लैब है वो इस मामले में आपके साथ ताउन कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, ठीक है। क्या तवक्को है, अब क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, या क्या मुतालबात हैं? भी कोई भी है, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, मैं हूँ, माफ़ी नहीं है। देखो मेरा घर तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया। मेरे 3 बच्चे, एक मेरी बीवी, एक मेरा बेटा, वो कश्म बिस्तर मर्ग पे है। हाँ जी, ठीक है ना जी, ये बात है जी। क्या शक है किसी पर, या शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करवाया? एक वो मेरे भांजे पे शक है, उसको मैंने गिरफ्तार करवाया है। आपने खुद करवाया अपने भांजे को? हाँ जी, मैंने खुद करवाया जी। शक किस बुनियाद पर था? क्या हालात ऐसे थे या कुछ फैमिली के मसाइल ऐसे थे? शक कोई 2-3 उसने छोटे छोटे नुकसान कर रखे थे हाथे में, ठीक है जी। पहले मैं उसको अपने साथ रख रखा था काम पे। बीवी मेरी बोली इसको ये ठीक नहीं, इसको छुट्टी करवा दो। मैंने वो छोड़ दिया था, वो चला गया पीछे। इस वाक़े से पहले आपने छुट्टी करवा दी थी उसकी? छुट्टी 2-3 माह पहले छुट्टी करवा दी थी। और आपके भांजे को पता था कि आपकी बीवी के कहने पर छुट्टी हुई है इसकी? भांजे को पता था, लागत बाजी थी, ठीक है। वो पीछे चला गया, फिर हमने थ्रेशर चलाई, वो आ गया मशीन पे लग गया, ठीक है ना जी। इसी वजह से जी ना। जहर खुरानी से जाँ बहक होने वाली खातून और बच्चे, उनके ननियाल, बच्चों के ननियाल और उस खातून के महके इस वक्त मौजूद हूँ। उनके बहन भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ घरेलू मामलात कैसे थे, जिसके बाद सूरत हाल ऐसी हुई कि किसी को इल्म ही नहीं हुआ कि जो पराठे या जो चीज़ भी खाई वो जहर आलूद हैं। जहरीला खाना खाने से जाँ बहक होने वाली खातून के भाई और उन मासूम बच्चों के मामू हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस केस के मुद्दई भी हैं अब्दुल समद, इनसे बात करते हैं। अब्दुल समद भाई, ये बताएगा ये वाक़या शुरू कैसे हुआ, कितना ड्यूरेशन था जिन्होंने सरवाइव किया, और उसके बाद क्या सूरत हाल रही? ये वाक़या ऐसे है कि इतवार की सुबह हमशीरा ने नाश्ता बनाया बच्चों के लिए। जो बहनोई थे वो खेती बाड़ी करते हैं, काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। हमशीरा थी और उनकी सास थी और उनके बच्चे थे। हमशीरा ने हस्बे मामूल नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद बच्चों से दिया। कुछ बच्चों ने अचार से नाश्ता किया, हमशीरा ने भी अचार से किया, और 2 बच्चों ने जो है वो चाय के साथ नाश्ता किया, पराठे और चाय खाई है। उसके बाद वो रूटीन के कामों पे लग गई हमशीरा। तो हमशीरा ने थोड़ी देर बाद ना वो जिस घी में पराठे बनाए थे, वो सालन बनाने के लिए जब घी निकालने लगी, देखा तो घी में उसे कुछ ज़रात नज़र आए हैं हमारी हमशीरा को। जब ज़रात नज़र आए हैं तो उन्होंने अपनी जेठानी को साथ वाले घर से बुलाया, उसको दिखाया। उन्होंने कहा कि आप इस घी को साइड पे कर दें। उन्होंने ना एक प्याली में वो घी साइड पे निकाल दिया और बच्चे को भेज के नया घी मंगा लिया दुकान से। तो फिर वो दाल बनाई है, वो नए घी से बनाई है। इसी दौरान 11:30-12 बजे बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है, उल्टियाँ लगी हैं बच्चों को और दिल घबराया। हमशीरा ने बहनोई को फ़ोन किया, बहनोई आए हैं। उन्होंने
7 अप की बोतल लेके आए, 7 अप की बोतल दी है, डॉक्टर के पास ले गए। गांव में डॉक्टर कोई MBBS तो था नहीं, ऐसे ही रूटीन कंपाउंडर डॉक्टर था। उन्होंने चेक किया, उनको इंजेक्शन वगैरह या दवाई दी है, तो कुछ वो ठीक हुए हैं। उसके बाद शाम को फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो बहनोई और उनकी जो है भाभी बहनोई की, यानी हमारी बहन की जेठानी, वो उनको सिविल अस्पताल लेके गए हैं। बच्चों के बारे में ज़रा ये बताइए कि बच्चों की हालत कैसी थी उस वक्त? 2 बच्चे तो सर्वाइव कर रहे थे, और ख़ास तौर पे ये डॉक्टर्स ने कब डायग्नोज किया कि ये कोई हैज़ा बहरानी कोई और मरज़ नहीं बल्कि जहर दिया गया है? ये मतलब आज जैसे कि एतवार की सुबह को नाश्ता किया और सोमवार की शाम को जाके उन्होंने कहा है कि इनको कोई कोई पॉइज़न दिया गया है, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि कौन सा पॉइज़न है। ये जहर दिया गया या जहर मिला या कोई जहरीली चीज़ गिर गई, क्या पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि क्लोज हो सके कि क्या था ये माजरा? ये माजरा बस इसी पहले जब हमारे 2 बच्चों की डेथ हुई तो मैं उनकी डेड बॉडी के साथ इधर आया था। जब मैं इधर आया तो वो हमारा बहनोई और उनके भाई वगैरह कहने लगे नहीं हमने पोस्टमार्टम नहीं करवा। मैंने शक किया था कि हम पोस्टमार्टम करवा लें, उन्होंने कहा नहीं करवाना ये वो। उसके बाद जो है ना, जब तीसरी बच्ची की डेथ हुई है ना, तो हमारे बहनोई ने भी एतराज़ नहीं किया, फिर हमने भी तीसरी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया। फिर हमने वो जो घी वगैरह था उसी दिन हमने थाना सदर के SHO को दे दिए थे, उन्होंने उसके फ्राइजिंग लैब में भेज दिया था लाहौर। PFA में होगा? हाँ, PFA में। कब आ रही है PFA की रिपोर्ट? वो अभी दिया हुआ है, अभी तो कोई पता नहीं कब आएगी। अगर वो रिपोर्ट आ जाती तो बच्चों का इलाज जल्द से जल्द हो जाना था, क्योंकि डॉक्टरों को जहर का नहीं पता था। इससे पहले 2 दिन पहले भी उनके दूध में भी जहर मिलाया गया था। जब हमशीरा ने दूध देखा, दूध की रंगत चेंज हो गई थी जी। दूध की इस वाक़े से मतलब ये पराठे वाले वाक़यों से कोई 2 दिन पहले की बात है। ये पराठों की रंगत वगैरह, दूध की रंगत चेंज हो गई थी। जब चेंज हुई तो उन्होंने बहनोई को कहा, तो बहनोई ने कहा कि इसको फ़ौरन गिरा दें दूध को, तो वो दूध उन्होंने गिरा दिया था। उसका कोई टेस्ट नहीं करवाया? नहीं, उसका कोई टेस्ट नहीं करवाया था उस वक्त। उन्होंने कहा शायद ये वैसे ही कोई चीज़ गिर गई, लेकिन फ्रिज के अंदर मतलब दूध रखा था, उसके साथ मतलब जब चेंज कर गया था। जब ये हालत बिगड़ी, जिस दिन का ये वाक़या है, उस वक्त सबसे पहले कौन वहाँ पर गया था या कौन मौजूद था वहाँ पर? पहले तो उनके मतलब ससुराल वाले थे या खावन था। हमें तो मतलब जिस दिन हालत बिगड़ी है वो हॉस्पिटल गए हैं। एक रात गुजरने के बाद अगले दिन कोई 12:30-1 बजे हमारी हमशीरा को फ़ोन आया था, जो 7 हमशीरा जिनका मैंने बताया। तो उसके बाद फिर हमशीरा ने कहा ठीक है हम आते हैं, बहनोई वगैरह उधर मंडी में काम करते हैं, वो आए हैं शाम को। तो फिर वो शाम को हमशीरा को लेके गए हैं। उनका दोबारा फ़ोन आया, बहनोई ने कहा कि हम अस्पताल पहुंच गए, फिर वो हॉस्पिटल ही गए हैं डायरेक्ट उधर ही। आपकी हमशीरा से बात करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर आई थी, तो उनसे जानते हैं अगले का। आपको जब बताया गया कि हालत बड़ी ख़राब है, तो उसके बाद जब आप गई वहाँ पर तो आपने क्या देखा? किस तरह की सिचुएशन थी? क्या वो नॉर्मल रूटीन की ख़राबी तबीयत लग रही थी या कुछ मुख्तलिफ था? नहीं, कुछ मुख्तलिफ था। बड़े बेटे की, जो बेटा 8 साल का था, उसकी तो हालत ज़्यादा ही ख़राब थी। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा था। लेकिन बाकी एक जो सबसे छोटा बेटा था, वो आंखें खोले सीधे हाथ पाँव किए लेटा हुआ था। और जो बेटियाँ थी दोनों, वो थोड़ा सा जैसे नींद के गंगेले में सो जाती थी, उठ जाती थी। फिर बैठ के उन्होंने बताया कि आंटी हमने नाश्ता ही किया था, इसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया, कोई चीज़ भी नहीं, मेरी मम्मा ने बनाया है हम सब ने। फिर उसने बैठ के बेटी ने कहा आंटी पता नहीं घी में जब मम्मा ने बना लिया था, सारे काम कर लिए थे, हमने खाना खा लिया था, जब दोपहर में उसकी मम्मा ने दोबारा घी चेंज किया, थोड़ा सा बचा हुआ था प्याली में, तो कहती फिर हमने देखा आंटी उसके अंदर कोई सफ़ेद सी चीज़ें थी। यही उसकी बेटी ने बताया था और यही हमारी बहन ने बताया था। तब तक खा चुके थे, कोई वहम नहीं किया? वहम नहीं किया, क्यों ना कि ये तो सोचो गुमान में बातें थी ही नहीं है। लेकिन देखें, 2 दिन पहले वाक़या होता है कि दूध का रंग बदल जाता है, यानी कि उसमें कुछ मिला है। उसके बाद ज़रात हैं घी में, तो ज़रा भी शक नहीं हुआ? कोई मसला ऐसा नहीं फील किया आपकी बहन ने, मरहुमा ने कोई जिक्र नहीं किया? नहीं, उसके तो जहन और गुमान में भी नहीं। वो नींद के गंगेले में थी, जैसे जैसे अजीब सो जाती थी, फिर थोड़ी सी देर बाद उठती थी, फिर हमें थोड़ी सी बात बता देती थी, फिर सो जाती थी, फिर थोड़ी सी देर बाद ऐसे अजीब, फिर कहती मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल बहुत। बच्चे भी यही बोलते रहे कि मेरा दिल, हमारा दिल बहुत घबरा। आंटी हम सारा दिन पानी में ऐसे ही नहाते रहे, दिल घबराता है। घरेलू ताल्लुकात कैसे थे शादी के बाद से या ख़ास तौर पे इस वाक़े से पहले? ठीक थे, क्यों ना कि जुमेरात को बहन शाम को इधर आई है, हंसती बोलती खेलती, क्यों ना कि उसने अपने नंद के बेटे का रिश्ता देखने जाना था, हंसती खेलती मुस्कुराती बहन आई थी। बहन होने के नाते कभी आपसे कोई चीज़ शेयर नहीं की इस तरह के शक? कभी नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। भी खुश हमें तो जब भी वो बताती कि अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और जो दूध में जो मामला हुआ था उसके बाद भी कुछ ऐसे वहम नहीं हुआ कि शक नहीं? बहन को बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहन ने बताया था कि दूध में थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था दूध का, लेकिन वो
परेशान, बस उसने हमें यही बताया था कि पता नहीं। फिर कहती है मेरे मियाँ ने मुझे नहीं पीने दिया कि कभी बच्चों को या आपको कुछ हो ना जाए, ये दूध सारा ही गिरा दो। वो कहती है उसके बावजूद मैंने दूध को बॉयल किया लेकिन दूध फटा नहीं था। फिर उन्होंने गिरा दिया था लेकिन बच्चों को या खुद या अपने मियाँ को नहीं दिया था। वो वैसे ही दिल में आ गया कि शायद हो सकता है छिपकली वगैरह कुछ गिर हाँ भाई ऐसा कोई हो गया। दिल में ये चीज़ तो थी ही नहीं, अगर होती या कुछ थोड़ा सा शक होता तो बहन हमें कभी तो कुछ बताती। तो अभी आपका जहन क्या मानता है या आपकी जो फैमिली ख़ास तौर पे महके होने के नाते कि जहर मिलाया गया है या जहरीली चीज़ कोई गिर गई है या कोई गैर मियारी चीज़ थी? नहीं, डॉक्टरों ने हमें कन्फर्म बताया है कि जहरीली जैसे बिच्छू छिपकली काटा ये कुछ नहीं था। लाहौर में आप बहन के साथ ही थी, उन्होंने कन्फर्म हमें बताया है कि ये कुछ भी चीज़ें नहीं थी, इसके अंदर कुछ मिलाया गया है। जी, घी के अंदर कुछ मिलाया गया है। जुमेरात वाले दिन आजमोले में पूड़ियाँ निकलती है, वो लाया था मैं, जिसमें से एक मैंने मामू के बेटे को दिखाई, मैं क्या ये शहर से लाया हूँ, जहर है। तो उसके हाथ पे डाली, वो कहना हाथ धो ले। उसने हाथ धो लिए। फिर 2 पुड़ियाँ मैंने अजीम को दिखाई। अजीम बोला क्यों ना चाची आपा से लड़ती है, आपा उसके अंदर डाल दे, किसी चीज़ के अंदर डाल दे तो फिर काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं पहले अचार खोला, अचार में नहीं, फिर घी में 1 पुड़िया इसने डाल दी, 1 मैंने चम्मच चला के ढक्कन बंद कर दिया। जुमे वाले दिन ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਲੱਗੀ। ਉਲਟੀ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਾਚੂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਘਰੇ, ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਹੀਵਾਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅੱਗੇ जवाब देता उन्होंने। क्यों लगी, हुआ क्या था? आजमूले में से इसने ना वो 2 शापर गोलियां नहीं होती वो दिया थी। किसमें? घी में। घी में? हाँ, इसने पहले चूचियाँ वाली दवाई नहीं होती, वो इतनी कुछ शीशी मिलती है, वो दूध के अंदर डाली, उसके में हरा हो गया दूध। फिर इसने क्या दूसरा काम करता हूँ और इसका पता लग गया। आपने ऐसा किया क्यों? क्या मसला था? चाची माँ से लड़ती थी। किसी के कहने पे तो नहीं किया? नहीं। इस अंधोनाक वाक़े में एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि जो आखिरी सर्वाइवर था अब्दुल्ला, जिसकी उम्र 3 बरस थी, वो भी अभी थोड़ी देर पहले इंतकाल कर गए हैं। इस केस की कार्रवाई को लेकर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, नामजद मुलजिम में क्या उससे पेशरफ्त हुई है, डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डीएसपी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने दिल दहला दिए हैं, ना सिर्फ आरिफ वाला बल्कि दूर दूर तक। क्या पेशरफ्त हुई है, आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीज़ थी जिसमें किलर जो है वो बड़ा साइलेंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि वाकई इसमें बड़ी मुश्किलात तो हमें बहुत ज़्यादा पेश आई। जैसे ही इस वाक़े की इतला मिली, हमने तो पहले दिन से इसकी तफ्तीश शुरू कर दी थी। तो जो पहले दिन से हमें जिस चीज़ों पे पता चला जी कि ये नाश्ते के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो जिसमें नाश्ता उस दिन इनके पराठे बने थे और अचार इन्होंने खाया था, तो वो तो हमने पहले स्टेप पे ही उनको कब्ज़े में लेके बाकायदा उसका पार्सल बनवा के PFS में भिजवाया। और बाकी जो हमारे घर वालों को तो यही था कि जी पता नहीं क्या हो गया, जैसे वो तो बेचारे आपको पता है गम में मुब्तला थे। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता रहा, हमने अपनी तफ्तीश जो है, जो अपने हमारे बाकी वसाइल हैं, हमने सारे बरूए कार लाते हुए इसकी तफ्तीश जो है वो जारी रखी। और फिर पता चल गया कि जी ये 2 बच्चे जो हैं ये मशकूक हैं इस हवाले से कि ये जैसे जब तदफीन हो रही थी या वैसे घर के जो मामलात थे उसमें, या इनसे पहले डांट डपट के जो मामलात ये बताते हैं, तो उस हवाले से हमारा शक इन पे चला गया। तो जब ये अगले दिन फिर डेथ हुई, उसके बाद फिर हुई, आज आखिरी डेथ भी होगी है, तो हमने फिर वो इनके जो मामू हैं फौत होने वालों को, साबरा बीबी जो खतून खाना है, उनके जो सगे भाई हैं वो मुद्दई बने और उन्होंने हमें ये सारा रिपोर्ट किया और हमने इनको गिरफ़्तार किया। और आपने भी सुना, हमने भी देखा, और तफ्तीश के मराहल जो हैं, बाकी जितनी PFS की रिपोर्ट्स हैं और जो बाकी टेक्निकल जितनी हैं, इस पूरी तफ्तीश में हमारे सीनियर अफसरान जो हैं, ख़ास तौर पे DPO साहब, हमारे RPO साहब, वो ऑन बोर्ड रहे, हम उनको बताते रहे और उनसे हिदायत लेते रहे। बड़ा अंदोनाक वाक़या है जी, सिर्फ रफ़ाला के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। एक हंसता बसता घर, एक छोटी सी बात पे इन्होंने ये बड़ा सानहा किया। और मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये बतलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह पुलिस जो है
कोई कसर बाकी उठा नहीं रखेगी इनको सजा दिलाने में। बहुत शुक्रिया। डीएसपी साहब ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई हुई है ये मुद्दई के कहने पर, वरिसा के कहने पर शुरू हुई या उससे पहले 174 के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी थी पुलिस की? कार्रवाई पहले दिन से शुरू होगी। मैंने आपको बताया ना जी कि जैसे ही हमें इतला मिली थी और जैसे ही ये चूँकि लाहौर से आए थे और तदफीन के मराहल थे, तो उसी वक्त हमने कार्रवाई शुरू कर दी। हमने इनकी बात पे, हम पुलिस वाले हैं, ज़ाहिर है हमारा तो अपना एक देखने का है, सोचने का मुनफरद अंदाज़ होता है। हम चीज़ों को उस तरह नहीं देखते जैसे बाकी लोग देख रहे होते हैं। तो हमारा जो शक था वो आज आप देख लें, यकीन हमने तो पहले दिन ही गांव वालों से, और इसमें मैं कहूँगा कि जो माहिदीन हैं इस गांव के, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। हमारे जो शकूक शुबात थे उन पे भी उन्हें हमारे साथ उन्होंने हाँ में हाँ भी मिलाई, और उन्हें हमारे बड़ा कम्यूनिटी ने बड़ा हमें हेल्प आउट किया। तो इसमें बाकी मेरे SHO साहब, इनकी टीम, मैं, हमारे सीनियर अफसरान सब ऑन बोर्ड थे। और इसमें यह है कि चलें, ये दिल इस बात से मुतमईन नहीं होता कि इनको ये पकड़े गए हैं और हो गया, उन बच्चों का ख्याल आता है जिन पे ये बहुत बड़ा सानहा गुजर गया। तो इंशाल्लाह इनको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये कम उम्र हैं तो ये किसी के एमा पे कर रहे हो, ये एक आले कार बने हो या मोहरे बने हो? मैंने आपको पहले कहा ना जी कि अभी तो ये तफ्तीश आगाज़ हुई है, तो अभी तक की जो जितनी भी तफ्तीश है वो आपके सामने है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, अगर इसमें कोई भी मोहरा और होगा तो इंशाल्लाह बचेगा नहीं। बहुत शुक्रिया DSP साहब।